Good morning, everyone. Today we are going to start Unit 1 of microcontroller. Now, in front of you can see a syllabus of first unit, that is microprocessor fundamentals. Okay, so see here, in this unit you are going to learn about the introduction to the microcomputer, its block diagram, and various elements like bus, microprocessor, memory, I/O devices. Similarly, we can add different types of buses like address, data, and control buses. Afterward, we will turn toward the 8085 microprocessor, 8086 microprocessor. We will learn its architecture, fundamental block diagram, pin diagram, then which type of register are there, then arithmetic logic unit, bus system, then addressing modes, and very few things related to the instructions format and their classifications. Okay, so this is about the first unit curriculum. Now I start first point, that is block diagram of microcomputer system. Now here you can see in this block diagram total 5 different sections are present. First one is 8085 microprocessor, second one is EEPROM, third one is R/W memory, fourth one is input devices, and fifth one is output devices. All these sections are interconnected with each other. We will learn about each and every section. Then we will turn toward the different signals generated by these different devices. Now, here you can see elements of microcomputer are like CPU, program memory, data memory, output port, input port, and clock generator. Okay, so here clock generator is not shown. Generally, it is hidden. It is the heart. It will be the clock supplier. It will provide the clock signal, and over that, the overall operation of the entire sections is dependent. So that's why, with the help of clock signal, these blocks can communicate with each other. We can pass data from one device to another one and vice versa. So that's why the clock signals are necessary. Now we will see all these elements one by one. Okay, the microprocessor 8085, that is MPU. Okay, now we will see here it is a central processing unit. Okay, so here another block diagram is shown. It is a brief block diagram is shown in front of you. In this block diagram, again the same sections are shown in this section. Okay, now we will see all these points one by one. Okay, now first one is central processing unit. Now CPU consists of arithmetic logic unit, register unit, and control unit. The CPU is the heart of a microprocessor. So it consists of a arithmetic logic unit. The arithmetic and logic unit is used to perform a arithmetic and logical operation. The arithmetic unit will perform addition, subtraction. Similarly, the logical unit will perform AND, OR,
rotate. These kinds of operations are possible with the help of the arithmetic logic unit. Whenever the arithmetic logic unit will perform operation over the two datas, then the result is stored either in register or in a memory, or it will be sent to the output devices. Okay. Now the CPU also carries register and control unit sections. The CPU retrieve stored instruction and data from memory. It also deposit the process data into the memory. Okay, so keep it in mind all these points that I am telling you, because these points are necessary when you are going to attend the MCQ based question. Now, second point that I would like to tell you here, it is a register unit. Now, in terms of microprocessor and microcontroller, you will find various register. These register length will be either 8-bit, 16-bit, 32-bit, or 64-bit. These registers are used to store data temporarily during the execution of program. Some of these registers are accessible to the user. So user can write data, user can read data from these registers. Similarly, some registers are hidden from the user, which are present inside in the microprocessor or microcontroller. Some registers are visible, some registers are not visible. So those registers are not visible, they are utilized by the processor internally. But those registers are visible, they are accessible to the user for doing read and write operation. Getting my point? Now again I am telling you in depth. Now when you talk about the register, this register word already heard in the digital electronics. You already heard the shift register. Okay, counters, right? The shift registers as well as counters are made up of flip-flop. Flip-flops are cascaded. When 4 flip-flops are cascaded, then the resulting circuit or resulting device is called 4-bit shift register. In the same fashion, in our microcontroller or microprocessor unit, you will find a register. The length of register will be 8-bit. So when 8-bit will be the length, means it carries how many register? Your answer will be 8 register, 8 flip-flop. Okay. So how many flip-flops are there in the 8-bit register? So your answer should be 8 flip-flops. These 8 flip-flops work in synchronism with each other and will hold your 8-bit data. Okay. So remember the function of register. Then last is control unit. Now the control unit will provide timing and control signals, which is necessary for doing the overall operation in the microcomputer system. तो जो भी आप ऑपरेशन कैरी आउट करना चाहते हो with the help of microprocessor, RAM, ROM, input device or output device, okay, they will do action depend on only the timing signal. As the timing signal or as the clock signals are provided, okay, remember clock signal are very similar to timing one. Okay, so that's why
here timing status or timing diagram are comes in picture as you are going for further studies. Okay, so I will tell you about that timing diagrams, but slowly. Okay, now here remember clock signals are shared between these different devices, and here the control signal will generate a control signal of like read, write. So such of signal will be received by these devices, and they may either accept the data from the external world, or they may accept data from one device to another one, or they may transfer data to the external world. Right? Got the point? याद रखिए. ओके, कंट्रोल सिग्नल जैसे ही कोई डिवाइस या कोई सेक्शन को पास होंगे तो कंट्रोल सिग्नल दो ही प्रकार के होते हैं, आइदर वो रीड होता है या राइट होता है. तो रीड या राइट का क्लेरिफिकेशन और आगे जाके डिटेल में बताऊंगा. तो रीड अगर बोला तो वो पर्टिकुलर डिवाइस एक्सेप्ट करेगा डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड. ओके, अगर आप राइट बोलोगे, so that's why it will pass the data to the external world. Okay, so remember we can transfer data from one device to another device with the help of these timing and control signal. So that's why the all sections of the microcomputer system work in synchronism by accepting these control signals as well as timing signal. It control the flow of data between input and peripheral like input, output and memory. The control unit gets a clock which determines the speed of the IO devices. So here remember one important sentence. With the help of clock signal you can determine the speed of the IO devices. यानी अगर आपको वह डिवाइस का स्पीड अगर जानना होगा तो आप वहां पर क्लॉक या क्रिस्टल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना है उसके ऊपर आप वह डिवाइस का स्पीड अंडरस्टैंड कर सकते हो. स्पीड ऑफ ऑपरेशन उसे कहा जाता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन. जैसा आपके व्हीकल में स्पीड आप देते हो बाय एक्सेलरेटिंग द एक्सेलरेटर. ओके, इन द सेम फैशन हियर आल्सो you can operate the devices with the help of clock signal, but the clock signal are generated whom with the help of a crystal oscillator. That crystal oscillator will provide a sinusoidal or square wave signal. Okay, so that's why that signal are applied between these devices. Now whenever we talk about the central processing unit, then the central processing unit will do this action with the memory as well as IO devices. See, first of all, remember we have different kinds of memories and input-output devices are interface with the microcomputer system. Now, whatever the section I highlighted here, that I am telling you one by one, but before that, I am completing the further sections which are connected with the microcomputer or microprocessor system, right? So that's why here, remember, first section that is interface with the microprocessor is program memory, and second one is data memory. Now, what is meant by program and data memory? Now, here the program memory is nothing but a read-only memory. The purpose of read-only memory is to hold a program, or it hold our data
permanently. So the designer utilize this ROM as a program memory because our program should not deleted as the power supply will turn off. So that's why to hold our program constantly long time, the ROM are preferred by the manufacturer to hold a program. Okay. Similarly, some kind of data which is oftenly needed, that data is also held by the program memory or ROM. Okay. So that data is not changeable. You cannot change that data because it is held by the permanent memory. So that's why here the ROM is called as program memory. Now there are different kind of program memory are present like ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Okay. So here these memories you can find with the microcomputer system. Nowadays flash memory means like your pen drive. Okay. Similarly secondary memory like hard disk drive. Now cloud is also available. So that's why these types of memories are also available with you. But in earlier days, the ROM, PROM, EPROM and EEPROM was most prominently adopted while designing the microcomputer system. But nowadays, the additional like flash memory, secondary memory, cloud is also available for designing of microcomputer system. Now, one basic concept behind this program memory is it holds our program. So that's why that program is executed by the central processing unit. So remember, question is, what is meant by program? Program is nothing but a sequential sets of instruction. These sequential sets of instruction are organized as per our requirement. Who is going to organize that instruction? Your answer should be user or programmer. Programmer is going to write the program now. So that's why the programmer will be responsible for writing the program into the program memory. Remember, once the program is written into the program memory, the instruction which will be held by the program memory will be executed one by one when you power up or you reset the processor. दो बातें मैंने बताई यहाँ पर, ध्यान रखो। इस मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर रहता है, तो वो प्रोग्राम किसने लिखा है? डिजाइनर या प्रोग्रामर ने या यूजर ने, बराबर है। इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। रिमेंबर, इट इज अ वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। बट रिमेंबर, रॉम के जो ब्रदर्स है मैंने जो बताए, प्रॉम, ईप्रॉम, EEPROM, फ्लैश मेमोरी, ये जो ब्रदर्स है, ये ब्रदर्स बार बार आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे यूज करना पड़ेगा उस सिस्टम में। हाँ, उसमें से मैं पहली बात बता रहा हूं। जनरली जब आप माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन करोगे तो इमीडिएटली जो प्रोग्राम इस मेमोरी में प्रेजेंट है वह एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम? CPU, because here it will set over that program. So that's why it will start executing that program automatically. Similarly, there is another way, that is manual reset of the processor. When you restart your system like mobile, your PC, your desktop, your laptop, tab, then immediately the processor goes in restart processor.
processing and the program which is reside in the memory will start executing. Okay, and you will see the entire OS get refreshed and you will begin the operation from the scratch. Okay, now the next is data memory. Now प्रोग्राम मेमोरी को आपने कहा दिया यहाँ पर रोम है। अभी सेकंड मेमोरी यहाँ पर आपके सामने पिक्चर में आ रही है डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी को हम क्या कहेंगे? तो डेटा मेमोरी हमें डेटा होल्ड करने के लिए अलाउ करता है। सो दैट्स व्हाई इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको रीड और राइट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट वन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेमोरी इज दिस मेमोरी विल होल्ड योर डाटा एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन. As the power supply is turned off, the memory will lose the contents. It loses the content. Whatever data which is held by that memory will lost. So that's why it is also called as volatile memory. Okay. तो volatile memory इसे कहा जाता है डेटा मेमोरी को. Similarly, the program memory को और एक कहा जाता है non-volatile memory. Right? Remember, a microcomputer manipulates data according to the algorithm given by the instruction in the program in which program memory. याद रखिए, माइक्रोकंप्यूटर डाटा का मैनिपुलेशन कब करेगा? डाटा मेमोरी में जब कोई एक आधा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट होगा? प्रोग्राम मेमोरी में. जब प्रोग्राम मेमोरी से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसको डाटा लगेगा ना, बराबर है? तो जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसे डाटा लगेगा. तो डाटा को कहां से लेगा? डाटा मेमोरी से. और वो डाटा मेमोरी से जो डाटा लेगा उसके ऊपर वो मैनिपुलेशन करेगा और आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा. नाउ क्वेश्चन इज, हु इज गोइंग टू राइट द डेटा इनटू द डेटा मेमोरी? आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में मोबाइल नंबर कोई मैन्युफैक्चरर ने खुद डाल के दिए क्या आपको? आपके फ्रेंड्स के नंबर उसको पता था? नहीं. आपका आंसर नहीं रहेगा. तो वैसा ही यहाँ पर, वैसा ही आप मोबाइल में जैसे ही मोबाइल आप परचेस करते हो तो इमीडिएटली हु इज एंटरिंग योर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर? यू, यूजर. यूजर इज गोइंग टू राइट द डेटा इनटू द मेमोरी. सो हियर आल्सो डेटा मेमोरी में डेटा कौन लिखेगा? यूजर. बराबर ना? जो यूज करने वाला है वो यूज करेगा, जो यूज करने वाला है वो डाटा राइट करेगा. राइट? सो रिमेंबर, डाटा मेमोरी में डेटा राइट करने का और रीड करने का काम हम यूजर कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई यूजर को ही डाटा ऐड करना पड़ेगा, तभी वहां पर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा ना. एग्जाम्पल, आपके पास कैलकुलेटर है, आपको एडिशन करनी है. आपके पास दो नंबर है, पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3. अगर आपने 2 और 3 माइंड में रखे तो कैलकुलेटर एडिशन करके देगा क्या? आंसर रहेगा नहीं. क्यों? जब तक आप की प्रेस नहीं करोगे 2 + 3, तब तक आउटपुट आएगा क्या कैलकुलेटर में? आंसर नहीं रहेगा आपका. बराबर है ना? इन द सेम पैशन here also you need to write data into the data memory that is accepted by the processor by executing the program from the program memory. Got my point? Getting this sentence? Okay. This instruction may require immediate result to be stored. The functional block diagram in microcomputer have same internal register, which can also be used if available for such storage. External data memory is needed. If the
storage requirement is more. Apart from immediate storage, the data memory may also be used to provide data needed by the program to store some of the results of the program. Data memory is used for all storage purposes other than storage of program. Therefore, they must have head write capability RWM और RAM. ओके, तो इस वजह से यहाँ इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ओके, मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख के दी है, बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, then next one point is here, that is input and output port. Now question is, sir input पता है, output भी पता है। इनपुट माने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट माने आउटपुट डिवाइसेस। सो दैट्स व्हाई सर वी नो द लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हमने पढ़ा है, बराबर है ना। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से है भाई, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस माइंड में आएंगे आपके? पहला है कीपैड, ओके, दूसरा है टच स्क्रीन, बराबर है, तीसरा है माइक, ओके, चौथा है जॉयस्टिक, पांचवा है स्विच, छठवा है आपके पास कोई टेप या कार्ड रीडर, बराबर है। इतने सारे डिवाइसेस आपके पास हो सकते हैं एज अ इनपुट डिवाइस। चलिए मुझे बताओ लिस्ट करके कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारे सामने है स्क्रीन, तो हम उसको CRT कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, बराबर है। या मोबाइल की स्क्रीन है तो स्क्रीन भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। कोई विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहता है CRT को, बराबर। या कोई बोलता है सर स्पीकर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस, राइट, वेरी गुड, ओके। सिमिलरली आपके पास कोई और आउटपुट डिवाइसेस है क्या? फॉर एग्जांपल आप एक आधे LED के द्वारा भी ऑन एंड ऑफ सिग्नल देख सकते हो, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस। सिमिलरली आप 7 सेगमेंट अगर देखते हो तो 7 सेगमेंट में न्यूमरल डेटा आता है, वो भी एक अपना आउटपुट डिवाइस है। LCD स्क्रीन जो मोबाइल में है उसे कहा जाता है LCD स्क्रीन, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, बराबर है ना। प्रिंटर है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। हाँ, एक हमसे छूट गया स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस, ओके। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। सो सच टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर देयर in the world, outside world of the microcomputer system. You can interface these input and output devices with the help of a port. Remember, याद रखिए, हम यहाँ पर नाम नया आ रहा है पोर्ट्स। जो पोर्ट बोले तो रेलवे यार्ड जो रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे यार्ड रहते हैं, जहाँ हमारा जो मटेरियल्स है वो वहां लोड किया जाता है या डीलोड किया जाता है, बराबर है ना। जो आप कुछ मटेरियल या जो आप कुछ लेते हो तो जनरली फॉर एग्जांपल बोरिया है तो बोरिया वहां से लोड होंगी बोगीज में, कोचेस में, ओके, या वहां से नीचे उतारा जाएगा, बराबर है। तो ऐसे अगर आपके पास बल्क मटेरियल है, बल्क मटेरियल अगर रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में जहां पैसेंजर खड़े रहते हैं उसे पोर्ट नहीं कहा जाता है। जहां पैसेंजर खड़े रहते हैं वहां उसे स्टेशन कहा जाता है। लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म कुछ और ऐसे भी होते हैं कि वहां आपका ये इस तरह का मटेरियल, बल्क मटेरियल वहां उतारा जाता है या चढ़ाया जाता है, ओके। तो वहां उसे कहा जाता है पोर्ट, ओके। सो इन द सेम फैशन in our microcomputer system we can able to accept a bulk amount of data
और डिलीवर द बल्क अमाउंट ऑफ डाटा। सो दैट्स व्हाई जब डाटा बल्क लोगे या बल्क दोगे तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहेंगे पोर्ट, बिकॉज इट हैज कैपेसिटी, it has large amount of data holding capacity, so that's why we will say a port, याद रखिए। so that's why we may name this port as input port or output port। इनपुट पोर्ट यानी जहां डाटा का लेना होगा, जहां एक्सटर्नल वर्ल्ड से माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम डाटा लेता है उसे हम इनपुट पोर्ट कहते हैं, और आउटपुट पोर्ट यानी जहां माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एक्सटर्नल वर्ल्ड को डाटा देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट पोर्ट। ओके, गेटिंग द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग? ओके। And last, I already told you about the clock generator because it will be depend on the clock or crystal oscillator। तो मैंने यहाँ पे वो बात बताई है। ओके, ठीक है, मैं और एक पॉइंट ऊपर छोड़ के आया था, उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, अभी मेन कंसेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान देना। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, हाउ माय प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन क्या कहा मैंने, भाई मेरा प्रोग्राम यहाँ पर कैसे क्या एग्जीक्यूट होता है। देखिए, एग्जीक्यूशन होने के लिए यहाँ क्या क्या करना पड़ता है, यानी अगर आपको इनपुट डिवाइसेस से डाटा लेना होगा और आउटपुट डिवाइसेस को डाटा देना होगा, तो ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो आप वहाँ आपका पर्टिकुलर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स में एक्टिविटी क्या होती है ये मैं यहाँ इन चीजों से जो हाईलाइट जो लाइन से इनसे बता रहा हूँ। रिमेंबर, microcomputer system is interface with microcomputer system is interface with memories like RAM, ROM, and input and output devices. Now, when you want to read a data, means data is available over input port. So that data we have to read. We want to read that data. Now, question arises here, how is it possible to read data from the input port? So here you want to write a program and that program will permit you to read data. Okay, with the help of same, you can write the data over the output port. So who is responsible for doing this activity? Program. So question arises, where you can write the program? You can write the program into the program memory. Got my point? So what things are present in the program? Program carries the sequential sets of instruction. So that's why the sequential sets of instruction are copied from the program memory and passed to the microcomputer system. Okay, or microcomputer or microprocessor. Okay, once the instruction comes into the microprocessor will determine which type of operation will be instructed by you. So that's why the microprocessor will understand. The microprocessor will understand. So that's why what he will determine? He will determine भाई यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, मुझे डाटा लेना है या मुझे डाटा पास करना है या मुझे डाटा के ऊपर ऑपरेशन कैरी आउट करना है। इसमें तीनों बातें हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर या जो सिस्टम है वह डिकोड करती है वह इंस्ट्रक्शन को। वंस इट डिकोड दैट इंस्ट्रक्शन will get executed. Means as the instruction is getting executed, the microprocessor first work is to understand what that instruction is that. Okay, then it determine भाई मुझे डाटा अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, माइक्रोप्रोसेसर क्या सोचता है कि भाई मुझे ऑपरेशन करना है। ठीक है, मैं ऑपरेशन किन चीजों के ऊपर कर सकता हूं, तो ऑपरेशन में दो चीजों के ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूं या एक ही चीज के ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूं। चीज बोले तो डाटा,
मैं दो डेटा के ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूँ या एक ही डाटा के ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो आप बताइए मैं कितने डेटा के ऊपर ऑपरेशन करूँ, तो वो डिपेंडेंट रहेगा इंस्ट्रक्शन में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आई तो रिवाइंड करके फिर से सुनने का। राइट, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने इंस्ट्रक्शन दी है तो इंस्ट्रक्शन में आपको कौन से टाइप का ऑपरेशन करना है ये उसमें कोडेड रहेगा। तो प्रोसेसर क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि भाई यूजर को किस तरह का ऑपरेशन चाहिए है। ऑपरेशन उसे एडिशन चाहिए या लॉजिकल ऑपरेशन चाहिए, डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन चाहिए या डाटा एक्सेप्टेंस ऑपरेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो अगर ऑपरेशन चाहिए तो ऑपरेशन दो चीजों के ऊपर होगा, दो डाटा के ऊपर होगा या एक डाटा के ऊपर होगा। बात आ गई ध्यान में? हाँ, तो अगर आप 2+3 करना चाह रहे हो तो आपको 2 कहाँ है ये बताना पड़ेगा, 3 कहाँ है ये बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 2 और 3 कहीं रजिस्टर में अगर स्टोर किए होंगे तो आपको रजिस्टर के नाम बताने पड़ेंगे, बराबर है कि नहीं। अगर आपने वो दो नंबर में से एक नंबर रजिस्टर में रखा, दूसरा मेमोरी में रखा, तो भी आपको प्लेस बतानी पड़ेगी। अगर आपने एक नंबर रजिस्टर में रखा है, एक नंबर इनपुट डिवाइसेस से देना चाहते हो, तो भी आपको बताना पड़ेगा, बराबर है। सो दैट्स वाई ये जो मैं जो बता रहा हूं ये सारा थिंग्स डिटरमाइन किया जाएगा प्रोसेसर के द्वारा। वंस द प्रोसेसर विल डिटरमाइन बिग डाटा कहां से आने वाला है, फिर वह डाटा को एक्सेप्ट करेगा। वंस ही एक्सेप्ट द डाटा, इट अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। तो अगर आपने उसमें एक डाटा दिया होगा तो एक डाटा रिलेटेड ऑपरेशन होगा। अगर वहां दो डेटा होंगे तो दो नंबर होंगे, तो दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन होगा, बराबर। तो अगर आपने दो नंबर दिए हैं, 3 दिया है और 2 दिया है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने प्लस ऑपरेशन बताया कि माइनस ऑपरेशन बताया है। तो वो भी वो इंस्ट्रक्शन में कैरी होगा। वो इंस्ट्रक्शन डिकोड में वह अंडरस्टैंड करेगा कि यहाँ यूजर ने दो नंबर तो दिए, उसके साथ साथ दो नंबर का एडिशन करने के लिए कहा, बराबर है। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगी वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन शायद आपने बताया अगर होगा तो वो वहां से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्योंकि इट विल डू दैट ऑपरेशन मींस हु विल डू दैट ऑपरेशन, सीपीयू विल डू दैट ऑपरेशन। सीपीयू विल डू दैट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। once the cpu will finish that arithmetic operation, then question arise here कि भाई वो डाटा को मैं कहाँ दूं, बराबर है ना। आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, आपको कहा कि भाई 2 ऐड करना है 3 के साथ, माइंड में आपके पास हो गया 5, लेकिन आपको कहा थोड़ी मैंने बोलने के लिए, बराबर है ना। अगर आपने बोल दिया यानी आउटपुट डिवाइस के ऊपर आ गया, माउथ इज आउटपुट डिवाइस, बराबर है ना। तो मैंने आउटपुट डिवाइस बताया ही नहीं अभी तक, तो मुझे वो बताना पड़ेगा ना। तो बताने के लिए मुझे वहां इंस्ट्रक्शन रहेगी, तो इंस्ट्रक्शन के द्वारा मैं उसे बताऊंगा कि भाई शो दैट एडेड नंबर ओवर दैट आउटपुट पोर्ट। अगर आपने उसे कहा इंस्ट्रक्शन के द्वारा तो इमीडिएटली वो डाटा आउटपुट पोर्ट के ऊपर डिस्प्ले करेगा। गॉट माय पॉइंट। अगर आपने उसे कहा नहीं उसे रजिस्टर में स्टोर कर दो, मुझे मत बताओ, आपके पास माइंड में 5 है तो आपको कहा कि मैं माइंड के माइंड में ही रखो, बात खत्म हो गई। अगर आपको कहा कि भाई वो डाटा मेमोरी में रख दो, कल चल के मैं पूछूंगा, तो वो मेमोरी में आ गया, बराबर है। तो आप उसको रिमाइंड करके रखोगे और कल फिर से रिकॉल करोगे। गॉट माय पॉइंट। सो ये फैशन हमारे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स में होती है। तो ये होते समय हमें वहां पर कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है, रीड राइट इस तरह के सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। इस वजह से वहां कंट्रोल यूनिट भी इन्वॉल्व होता है, इंटरप्ट सिग्नल भी इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी बातें और डिटेल में क्लैरिफाई करूंगा, but I think it will be enough for your understanding. Got the point? Okay. Now, next point that I would like to tell you here,
बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। नाउ माइक्रोप्रोसेसर में अलग अलग टाइप के बस प्रेजेंट रहते हैं। बस मीन्स व्हाट? बस मीन्स a group of conducting wire which can carries information from one peripheral to another peripheral or one place to another place. Remember, अब हम यहाँ पर बस का ऑर्गेनाइजेशन देखने जा रहे हैं। हमारे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड, आईओटीज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे सिस्टम्स में आपको वहां पर बस का यूटिलाइजेशन होगा। बस मीन्स व्हाट? जस्ट इट इज अ कंडक्टिंग वायर हु कैन कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई नाउ these buses, these wires, मैं बस कहूं या वायर कहूं तो देखो, हाँ, तो यहाँ देखिए आपके सामने में एक ब्लॉक डायग्राम शो किया है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट लिखा है और राइट हैंड साइड में उसके इमीडिएटली डाउन साइड में मेमोरी, इनपुट और आउटपुट लिखा है। लेकिन वह सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, वह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वह इंटरकनेक्टेड कैसे हुए? वह इंटरकनेक्टेड बस के द्वारा हुए। ओके, सो दैट्स व्हाई वह बस के द्वारा वहां इंटरकनेक्शंस कैरी आउट किया गया। ओके सर, मैं बोलता ना थोड़ा। ओके, सो बस के द्वारा वहां इंटरकनेक्शन हुआ। अभी बस के टाइप्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं आपके। उसमें पहला आता है एड्रेस बस, दूसरा आता है डाटा बस, तीसरा आता है कंट्रोल बस। बराबर है? देखिए उसमें इंटरकनेक्शन में ही आपको दिख रहा है कि वहां एड्रेस बस सबको कनेक्टेड है, डाटा बस भी सबको कनेक्टेड है, उसी तरह कंट्रोल बस भी सबको कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ ये बस का यूज क्या है। देखिए हम बस के द्वारा ट्रेवल करते हैं। हमारा महाराष्ट्र टूरिज्म जो है या स्पेशल प्राइवेट बसेस है, वह अपने को जलगांव से पूना, जलगांव से बॉम्बे, जलगांव से नागपुर या जलगांव से आउट ऑफ स्टेट लेकर जाता है। बराबर? हम बस में बैठने के बाद वो बस अपने को एक प्लेस से दूसरे प्लेस छोड़ देती है। वैसा ही यहाँ पर आपको कैरी आउट करना है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है या ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन है? ध्यान दीजिए, दो बातें आपके सामने आएगी। पहली बात आएगी इंस्ट्रक्शन और दूसरी बात आएगी डेटा। डेटा अगर मैं कहूं तो डेटा टू वे होता है। डेटा की बात अगर करूं मैं तो वह डेटा टू वे होता है, और मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो वो वन वे होता है। बराबर है? अभी आपको इंस्ट्रक्शन कौन देता है? बराबर है ना? समझ में आ गया ना? इमीडिएट माइंड में आया। बराबर है? इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है अभी आपको? फॉर एग्जाम्पल आई एम, ओके, द टीचर हु इज गोइंग टू instruct the students. So that's why here the instruction is one directional. बराबर है ना? जब वहां पर कम्युनिकेशन होगा, बिटवीन द टीचर एंड अ स्टूडेंट, देन देयर इज अ डेटा का मूवमेंट होगा। बराबर है ना? जब टीचर कोई बात बता रहा है तो वो एक्सेप्ट करने का काम स्टूडेंट का रहेगा, तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जब टीचर बोलेगा तो उसको एड्रेस कहा जाएगा। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों बात करेंगे तो उसे डेटा कहा जाएगा। गॉट माय पॉइंट? एकदम सिंपल सरल भाषा में मैं बता रहा हूं एड्रेस और डाटा का मीनिंग। ओके, उसी तरह कंट्रोल सिग्नल आता है। अभी कंट्रोल सिग्नल यानी डायरेक्शन। ओके, उसमें मैंने बताया भाई कंट्रोल सिग्नल दो तरह के होते हैं। कौन से? एक तो होता है रीड और एक तो होता है राइट। बराबर है ना? तो उसी तरह यहाँ कंट्रोल सिग्नल आएंगे आइदर इन रीड फैशन और आइदर इन राइट फैशन।
यानी कंट्रोल सिग्नल की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जब दो बातें कर रहे हैं तो उनमें एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, जब दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। तो आप में वो वे ऑफ कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी हो गई है। जब एक बात कर रहा होगा तो इमीडिएटली वहां दूसरा लिसनर ही होगा ना। गॉट माय पॉइंट? यानी अगर माइक्रो प्रोसेसर के पास अगर डेटा होगा तो माइक्रो प्रोसेसर जब कोई डिवाइसेस को डाटा दे रहा होगा तो वह डेटा देते समय वो बोलेगा आई एम राइटिंग। रिमेंबर, तो राइटिंग कहाँ पॉसिबल है? राइटिंग यहां पर पॉसिबल होगी मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस में। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि मेमोरी रीड करेगी ना डाटा, मेमोरी एक्सेप्ट करेगी ना डाटा, आउटपुट डिवाइस भी एक्सेप्ट करेंगे ना डाटा। इस वजह से माइक्रो प्रोसेसर डाटा सेंड करेगा तो वहां राइट ऑपरेशन होगा, तो मेमोरी या आउटपुट डिवाइसेस उसे एक्सेप्ट करेंगे। गॉट दिस? सेकंड पॉइंट होता है, कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर डाटा लेता है। तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा लेता है तो कहां से लेगा? डाटा लेने के लिए ऐसे कौन से यहाँ पर आपको सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं कि वो डाटा दे सकते हैं? इसमें से मेरे सामने पहला आ रहा है इनपुट, दूसरा आ रहा है आउटपुट। है क्या कोई है भाई आउटपुट से डाटा देने वाला होए? बराबर है, आउटपुट गलत रहेगा आपका आंसर। आउटपुट डाटा देता नहीं, सिर्फ लेता है। इनपुट यहां पर डाटा एक्सेप्ट करता है, आउटपुट सिर्फ डाटा लेता है। इनपुट डाटा देता है, इनपुट डाटा देता है। बराबर है, इनपुट किसको डाटा देगा? माइक्रो प्रोसेसर को। आउटपुट किससे डाटा लेगा? माइक्रो प्रोसेसर से। बराबर है ना? सिमिलरली मेरे पास सेकंड चीज आएगी, सेकंड डिवाइस आएगा मेमोरी। memory will help you to read, memory will help you to write, so both operation are possible with the help of memory। तो माइक्रो प्रोसेसर को डाटा देने वाले कौन से दो डिवाइसेस हो गए? पहला हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया आउटपुट डिवाइस, सॉरी दूसरा हो गया मेमोरी डिवाइस। बराबर है ना? सो दैट्स व्हाई इन दोनों डिवाइसेस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर जब एक्सेप्ट करेगा डाटा तो उसे क्या कहेंगे हम? राइट ऑपरेशन। ओके, याद रखिए। हाँ, तो याद रखना, मैं यहाँ पर जो बताया वो यहाँ आप अगर डाटा इनपुट डिवाइसेस से दे रहे हैं, मेमोरी से दे रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट करेगा तो आप डाटा कहाँ से दे रहे हो? इनपुट और मेमोरी से। रिमेंबर, याद रखिए, ध्यान दीजिए। तो वहां हम राइट ऑपरेशन नहीं रीड ऑपरेशन करेंगे। क्या? रीड ऑपरेशन करेगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर उनसे रीड करेगा ना। क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर इनपुट या मेमोरी से रीड करेगा, और माइक्रो प्रोसेसर राइट कहाँ करेगा? मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस। सेम कॉन्सेप्ट याद हुआ? समझ में आया? अभी चलते हैं, थोड़ा और दो पॉइंट बता देता हूं। एड्रेस बस, रिमेंबर एड्रेस बसेस आर यूनिडायरेक्शनल, इट विल कैरीज एड्रेस ओनली। ओके, याद रखिए, एड्रेस बसेस आर यूनिडायरेक्शनल एंड इट विल कैरीज एड्रेस ओनली। ओके, तो ये एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, लेंथ ऑफ एड्रेस बस कितनी होती है? तो जनरली एड्रेस बस की जो लेंथ होती है वह 16 बिट की होती है। ओके, अगर 16 बिट की हुई तो 16 बिट यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम उसे हेक्साडेसिमल में कहते हैं 0000H to FFFFH। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ये हेक्साडेसिमल कन्वर्शन तो आई विल टेल यू लेटर ऑन in my further lecture, but at this moment I am just skipping this। Okay, so remember the length of address bus is 16 bit and its hex is 0000H to FFFFH is a hexadecimal address।
Similarly, the microprocessor 8085 can transfer maximum 16-bit address, which means it can address 65536 different memory location. जो 16 है वो 16 को हमने हेक्साडेसिमल में आपको कहा 0000H2FFFFH, लेकिन अगर मैं 16 को 2:16 यानी मेरे पास उसका कन्वर्शन अगर मैं करूं 2:16, अगर उसका कन्वर्शन करूं तो वह कन्वर्शन होगा 65,536। ओके, तो ये इतने मेमोरी लोकेशन एड्रेस करने की कैपेबिलिटी माइक्रोप्रोसेसर में 8085 में होगी। ओके, सिमिलरली कुछ ऐसे माइक्रोप्रोसेसर है उनमें 32 बिट मेमोरी 32 बिट एड्रेस बस अवेलेबल होती है। ओके, तो वो 32 बिट की मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जनरली अगर हम 16 बिट की मेमोरी 16 बिट का एड्रेस लाइन अगर होगा तो वहां लेंथ ऑफ मेमोरी 64 बिट की रहेगी, 64 केबी की रहेगी। याद रखिए, अगर 16 बिट का एड्रेस लाइन है तो वहां पर 64 केबी का मेमोरी इंटरफेस होगा। अगर आपके पास 32 बिट की मेमोरी है, सॉरी 32 बिट का एड्रेस बस है, तो वहां आप 4 जीबी का मेमोरी स्पेस इंटरफेस कर सकते। ओके, second point is data bus. Now data bus means here it is again a group of conducting wire, it carries only data. Okay, तो data bus का पर्पस क्या है? To hold a data and to move a data from one place to another place. Okay, data buses are bidirectional because data will be flow in both direction from memory to microprocessor or microprocessor to memory, or input or output devices to microprocessor or reverse. Okay, now the length of data bus is 8 bit. अब अगर डाटा बस की लेंथ अगर देखोगे तो वो 8085 में 8 बिट की है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन करोगे तो वो आएगा 00H से लेकर FFH। ओके, अगर आप यहाँ हाई एंड प्रोसेसर की टूवर्ड अगर जाते हो तो वहां 8 बिट की जगह 16 बिट 32 बिट 64 बिट का डाटा बस वहां प्रेजेंट रहता है। तो जैसे जैसे डाटा बस बढ़ेगी वैसे ही उसका हेक्साडेसिमल नंबर भी बढ़ते जाएगा और वहां पर डाटा होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। गॉट माय पॉइंट? ओके, एंड लास्ट that I would like to tell you here, a control bus. Control bus means it is again a group of conducting wires which is used to generate the timing and control signals. It will control the all peripheral which are associated with the microprocessor. Okay, तो जितने सारे माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो पेरिफेरल इंटरफेस हुए हैं उन सारे पेरिफेरल में ये कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस शेयर होती है और उनके द्वारा इन कंट्रोल सिग्नल्स का मूवमेंट होता है। अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई वहां 2 तरह के कंट्रोल सिग्नल होते हैं, पहला होता है रीड और दूसरा होता है राइट। तो अभी यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग कंट्रोल सिग्नल यहाँ पर बताए हैं, लेकिन ऑपरेशन तो एक ही है, आइदर रीड है या राइट ही है। ओके, तो अगर आप मेमोरी के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो मेमोरी के साथ रीड हो सकता है, मेमोरी के साथ राइट हो सकता है, बराबर है। सिमिलरली आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ ये ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हो तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ रीड या राइट ऑपरेशन हो सकता है। और नेक्स्ट है जहां प्रोग्राम मेमोरी है, वो प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम प्रेजेंट है, वो प्रोग्राम को जब आप वहां इंस्ट्रक्शन रीड करने जाते हो तो वो इंस्ट्रक्शन का एक कोड होता है, उस कोड को कहा जाता है ऑपरेशन कोड और हेक्साडेसिमल कोड। रिमेंबर मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने ऑलरेडी अबव सेक्शन में प्रोग्राम मेमोरी देखे,
प्रोग्राम मेमोरी में क्या प्रेजेंट होता है? आपका आंसर रहेगा सर प्रोग्राम प्रेजेंट होता है। ओके, जब आप प्रोग्राम उसमें फाइंड करते हो तो प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन रहती है वो इंस्ट्रक्शन का हर एक का कोड फिक्स रहता है। जैसे आपके रोल नंबर फिक्स है, जैसा आपका रोल नंबर है 1 2 3, नाम अलग अलग है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन के कोड फिक्स होते हैं। उस अकॉर्डिंग उस कोड के द्वारा वह इंस्ट्रक्शन को पहचाना जाता है। तो वह कोड को यहाँ कहा जाता है ऑपरेशन कोड। राइट, गॉट माय पॉइंट? तो वह कोड को क्या कहा जाता है यहाँ पर? ऑपरेशन कोड। तो वो ऑपरेशन कोड अगर लेना होगा तो अगर वो ऑपरेशन कोड को लेना होगा तो यहाँ उसे कहा जाता है ऑपरेशन कोड फेच ऑपरेशन, यानी हम रीड करेंगे वो कोड। राइट, so that's why such type of operation are narrated under the control bus। तो इतने सारे ऑपरेशन आपको यहाँ कंट्रोल बस में दिखाई देंगे। तो आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर द फर्स्ट लेक्चर। ओके, so that's why I end up this point here। okay, I hope you got idea about the all the microcomputer system. In case if you have doubt from this video, you try to write it separately on a page and ask me over my WhatsApp number। okay, or as well as you can put the query over the video comments। okay, और एक दूसरी बात, आपने वीडियो देखा, आपने यहाँ पर ये लेक्चर सुना, अभी ये लेक्चर सुनने के बाद आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई डाउट अगर रहा या आपको और कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। आप आपके फ्रेंड के साथ उसे शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो और आपको और एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप यहाँ पर आपका अटेंडेंस लगाना चाहते हो तो आप रेगुलर हैं, रेगुलर अटेंड कर रहे हो। देखिए ये टाइम बेस अटेंडेंस रहती है, तो आपने जैसे ही वीडियो देखा तो वहाँ टाइम भी दर्ज हो जाता है, डे भी दर्ज हो जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अटेंडेंस यहाँ लगाना जरूरी रहेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ अटेंडेंस भी लगाइए। सो दैट्स व्हाई थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग my video। Thank you very much।